Hello and welcome to this special broadcast on NDTV. We are in Ayodhya and this is an effort in building faith which is on. What you see behind me, that flag, is the Sanctum Sanctorum under construction. Hectic activity in Ayodhya at the Ram Temple where workers, more than 1,000 of them from Larsen and Toubro, are working day and night. There are some activities that are done in the night and then there are others that are done during the day. But non-stop, 24/7, this entire work is happening. As I told you, the idea is building faith. For the Hindu community, a wait for many, many years, which also involved pursuing a legal battle for many, many years. Ended in 2019. In 2020, the work began, and in Ayodhya, at the Ram Temple site, this is the Sanctum Sanctorum. Right now, the statue of Lord Ram is in a makeshift arrangement a few meters away, but eventually it's going to be right here. How exactly is the mandir shaping up? We'll be speaking to the architects of this temple, people who are involved day in and out in making sure that this temple construction meets the deadline. What exactly is happening, and will this Sanctum Sanctorum as well as the entire area right here be ready by the 1st of January 2024? Let's find out. So this is as close as we can get to the Sanctum Sanctorum. This is where the Ram Lalla idol is going to be kept. As you can see, that flag right up there, which means that this is the exact position which is going to be called the Garbh Grah. So eventually when you come here, once this temple is fully constructed, you're going to be standing somewhere here and you're going to join your hands, pay your respects, right? Pray to the deity and then move out. So that, I think, is the corridor right behind us. You come from here, you leave from there, right? And this is where the Ram Lalla idol is going to be. Now, it is under construction, but since this is the Sanctum Sanctorum, we're not going to go inside with shoes on. So let's just leave it here. बहुत सारे भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ पर श्रमिक आकर के काम कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा से आप यहाँ पर आए हैं? हाँ। कितने महीने से? 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने हुए। तो ये क्या लोग आते जाते रहते हैं या? हाँ, आते जाते रहते हैं लोग। अच्छा, तो पिछले 2-3 महीने में कैसा रहा तजुर्बा? अच्छा रहा। हाँ? अच्छा रहा। हाँ, मज़ा आ रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे लिए अच्छी सेफ्टी दे रही है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है L&T कंपनी। हाँ। आप कहाँ से हैं भैया? भरतपुर। आप भरतपुर? आप भरतपुर से। तो राजस्थान से भी हैं लोग, यूपी से भी लोग हैं, आगरा से भी हैं, और कहीं से कोई है या आप सब भरतपुर के ही हैं? कई लोग। अच्छा, हम तो भरतपुर के। आप भरतपुर से हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर काम किए हुए? हो गए 6 महीने के। 6 महीने हो गए। आपको? मेरे को 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। कैसा रहा है ये तजुर्बा? बहुत अच्छा रिजल्ट है, कंपनी का भी और मंदिर का भी सहयोग पूरा रहेगा हमारा। हाँ, बनेगा जब तक लास्ट तक रहेंगे। हाँ। जल्दी लेकिन काम करना पड़ रहा है नहीं? जल्दी। हाँ? सबसे तेज फास्ट काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर खूब सारे लोग लगे हुए हैं, और ये जैसे आम तौर से निर्माण होता है वैसा निर्माण नहीं है ये, जैसे सीमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। नहीं, काम बराबर 1 नंबर 1 काम हो रहा है। खूब अच्छा हो रहा है। सेफ्टी से हो रहा है और वैसे भी मजबूत काम हो रहा है। मजबूत काम हो रहा है। हाँ, मजबूत काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो पत्थर की घिसाई करके क्या करते हैं आप? पत्थर के ऊपर पत्थर रख देते हैं। हाँ, सीमेंट लगाना पड़ता है ना बीच में। हाँ। क्लेम भी डालनी पड़ती है। हाँ, तब रखते हैं इसको। चलिए, उम्मीद करते हैं जल्दी से कंप्लीट हो जाए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।
हाँ क्या चीज? जल्दी से प्रसाद मिल जाए जल्दी से प्रसाद मिल जाए। हाँ बहुत बढ़िया। आगे आ जाए, प्रसाद लेते रहिए, प्रभु रामलला जी के दर्शन करते जाइए। रामलला बाल स्वरूप में चारों भाई हैं, दर्शन कीजिए। हनुमान जी का दर्शन। तो अभी जब तक मंदिर का निर्माण चल रहा है, पिछले कुछ सालों से यहीं पर रामलला की मूर्ति है और यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी जय श्री राम। बताएं। ये रोज इतनी भीड़ रहती है या अभी आज विशेष? नहीं, डेली ही भीड़ होती है और जो है किसी दिन 20,000, 30,000, 40,000 संख्या रहती है आम दर्शनार्थियों की। और बहुत तेज़ी से भक्तों को आप देखेंगे कि जो है रामलला जी के दर्शन कर रहे हैं और सबको प्रसाद वितरण दिया जा रहा है रामलला जी के राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से। इंतज़ार हो रहा है कि कब गर्भगृह में जाएं। अब गर्भगृह में तो भगवान का मंदिर बन ही रहा हो, 2024 तक भगवान भव्य मंदिर में विराजेंगे रामलला जी। और उससे ज़्यादा भक्तों की संख्या और बढ़ेगी तो उस समय जान लीजिए लाखों आएंगे डेली राम मंदिर बनने के बाद। ऐसी उम्मीद की जा रही है और अयोध्या में सुंदरीकरण हो रहा, चौड़ीकरण हो रहा, बहुत अच्छी बात है। रामलला का मंदिर बना भव्य रूप से। आप तैयार हैं और श्रद्धालु जब आएंगे उसके लिए? जी, इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। बहुत अच्छे से पूजा पाठ और जो है दर्शन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होगी। जय सिया राम। जय सिया राम। What you see behind me is a crane putting stones on top of a tractor trolley, and this is the place you can see behind me. That is the temple under construction, and all the stones that are being put or assembled in the temple are all being carved and sorted out in this region right here, right next to the temple. So you've got these cranes. These cranes pick up the exact stone. These stones are marked where they will go. That marking is done. So for instance, SMV2 BCPL 1235. So this is stone number 35. It's unique. There will be no other stone number 35. Because if you come here, you would see the same dimension stone over here has a different number, 49. So each stone has its own marking. The smaller stones will be numbered 26. They've got their respective codes. And then of course these are just blocks. If you go for the ones with carvings, for instance, like this one, which is completely covered in foam so that the carvings do not get destroyed or chipped. They have specific markings. Take a look at this, for instance. Now this, consider what is happening right now as if this is a giant jigsaw puzzle. So this will obviously have its own place in the temple, and that is why it's got its own marking, MTV3, Ghat, Samran, Thar 4A1. So that's the numbering that is being done. A similar pillar here also, Rajesh is going to show you right here. It's got a similar marking over here. So every stone catalogued, measured, and then with the help of such cranes, you can see L&T workers, they would lift these stones. It's all sorted. They know which stone goes where and which stone will go in which batch. And that stone is then wrapped, picked up very gently, because you cannot be rough with this exercise. Otherwise, these stones stand a chance of getting chipped, which is why you see a sheet, I believe, is being maintained. In fact, this is very interesting. Rajesh will show you. If you look at this sheet, ये जो भी पत्थर है उसका नंबर है ना ये? जी उसका नंबर है। मतलब जो पत्थर यहाँ से आप इस कोड के साथ उठाएंगे वो इसी में जाएगा जी। ये मंदिर पे जाएगा, वो टावर कैन पे जहाँ लगना है उस पे जाएगा। उस हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से भेजते हैं। और आपने पूरी यहाँ पर पत्थरों की कोडिंग कर रखी है और उसी हिसाब से हो जाएगा। कोडिंग तो राजस्थान से ही आती है, यूपी बना हुआ है प्रॉपर। हाँ जी। दो टाइप के पत्थर हैं, एक तो ये वाले और एक है थोड़ा प्लिंथ स्टोन, बैक स्टोन है। बैक स्टोन ये फिलिंग में आएगा, बाकी कार्ड स्टोन है। हाँ जी। और जो थोड़ा सीमेंट टाइप का है वो पत्थर
सर वो तो मेरे स्कोप में है नहीं, अच्छा, तो इसलिए आपका यही काम है। ठीक है, थैंक यू। Very meticulous the exercise over here, and all these stones, as you saw, as you were just told, will then be picked up, put on that tractor. The tractor trolley will take it there, and it will be placed at its exact place in the temple. Very, very calculated and concerted effort, this. तो हम राम मंदिर जहाँ निर्माण हो रहा है राम मंदिर का बिल्कुल उसी जगह पर हैं, और ये हमारा सौभाग्य है NDTV पर हमारे साथ हैं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर NDTV से बात करने के लिए। एक सवाल सबसे पहले मैं जो न्यूज़ में है तो न्यूज़ी वाला सवाल पहले आपसे पूछेंगे। 1 जनवरी 2024 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है कि टिकट कटवा लो, मंदिर रेडी हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि अभी आज हम दिन भर घूमे, ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा इतनी जल्दी। तो नृपेंद्र जी, क्या क्या चीज़ तैयार हो जाएगी? नहीं, आपने अच्छा किया पूछ लिया, और आपके माध्यम से मैं बहुत बड़े वर्ग को ये बात अपनी पहुंचा सकूंगा। देखिए, एक तो कल्पना यह होती है कि मंदिर पूर्ण होगा का स्वरूप यह है कि उस मंदिर में डेटी भगवान स्थापित हो जाएंगे, जिसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ के मंदिर में निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम के अनुसार दिसंबर 2023 तक प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में जो सैंक्टम सैंक्टोरम माना जाएगा वहाँ पर उनकी हो जाएगी। उसके अलावा जो बाकी मंडप हैं, जैसे गृह मंडप है, नृत्य मंडप है, 5 मंडप हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में जो मंडप का निर्माण है वह पूरा मंदिर का स्वरूप हो जाएगा। यानी आप उसके प्रवेश द्वार से लेकर के भगवान का दर्शन करने तक मंदिर का निर्माण पूरा होगा। यह हमारा कार्यक्रम दिसंबर 2023 का है। लेकिन मंदिर के 2 अंश और हैं। वो है मंदिर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर सेकंड फ्लोर। और जो मंडप हैं, जैसे 5 मंडप हैं, तो उसके बाद 3 मंडप होंगे, फिर 2 मंडप हो जाएंगे। और गर्भगृह के ऊपर और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर फिर शिखर होगा जो 161 फीट ऊंचाई का होगा। तो यह जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का निर्माण कार्य है, यह दिसंबर 2024 में पूर्ण होगा। तो यह मान करके चलें कि दिसंबर के बाद जनवरी 24 से श्रद्धालु इस मंदिर में आ सकेंगे। उनको आने की सुविधा होगी, दर्शन करने की सुविधा होगी, क्योंकि जो भगवान जो वर्तमान में एक टेम्पररी हटमेंट में हैं, वो यहाँ पर स्थापित हो चुके होंगे। तो सारे श्रद्धालु यहाँ आएंगे। फिर इस दृष्टि से मंदिर का निर्माण पूरा हो सकेगा। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर दिसंबर 2024 में होगा। फिर आप जानते हैं इसमें बहुत बड़ा कार्य मूर्तिकारों के लिए है। यहाँ आप यूँ समझिए कि करीब 350 पिलर हैं। उन पिलर में हर तरफ, यानी अगर 4 उसके तरफ देखें तो उनमें कम से कम 5-5 मूर्तियाँ लगेंगी। वो एक मंदिर के लिए जिस प्रकार की शैली अपनाई जाती है, जैसे ये नागर शैली में अपनाया गया है, तो उस शैली के अनुसार पिलर्स में कौन सी मूर्तियाँ होंगी ये भी स्थापित है। ये हमारे आप पर निर्भर नहीं करेगा कि हम क्या करेंगे या क्या सोच करेंगे, नहीं। इसी प्रकार से जो सारा लोअर प्लिंथ है
इसमें राम कथा के चित्र करीब 100 पैनल्स होंगे। इस 100 पैनल को भी हम 3D फॉर्म में उन पत्थरों पे मूर्तिकारी होगी और वो जो पत्थर म्यूरल्स बनेंगे वो लोअर प्लिंथ में फिक्स किए जाएंगे। तो वहाँ पर मूर्ति का कार्य होगा। फिर जो हमारे बाकी मंदिर के अंदर कार्य होगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो मार्बल लगेगा, मकराना मार्बल से जो फ्लोरिंग होगी, तो उनले उस पर भी इनले होगा, इनले वर्क होता है, वह भी होगा। तो हर स्टेज को ले करके हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक 2024 तक हम पूरा कर लें। एक तीसरा चरण है, आपको मालूम होगा कि ये मंदिर के साथ कुल मिलाकर करीब आज की तारीख में 71 एकड़ ज़मीन है। उसमें अन्य निर्माण कार्य भी हैं, 7 मंदिर बन रहे हैं, जो आपको जानकारी में समाचार पत्रों में था कि वाल्मीकि जी का मंदिर होगा, निषाद जी का मंदिर होगा, सबरी का मंदिर होगा। क्यों होगा ये भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम राम को जब मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं तो हम ये भी मानते हैं कि भगवान राम सभी के लिए हैं, इस देश के लिए ही नहीं विश्व के लिए हैं। तो उनकी जो शैली थी, जीवन शैली, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स नहीं थे। तो उन लोगों का भी यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, जिसके साथ कि भगवान राम की कथा में आपने सुना होगा कि किस प्रकार वो निषाद के साथ रहे, किस प्रकार सबरी के साथ रहे, बैर लिया उन्होंने, खाया उसको। तो ये सब चीज़ें तो उनके भी मंदिर बनेंगे, वो इस 71 एकड़ में है। फिर म्यूज़ियम बनेगा, पिलग्रिमेज जो यहाँ आएंगे, फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। ये सब दिसंबर 2025 तक होगा। तो मंदिर पूर्ण होगा, उत्तर हाँ है, दिसंबर 23 में। भगवान का दर्शन होगा, उत्तर हाँ है। लेकिन यदि आप इस पूरे भव्य 71 एकड़ का अनुमान लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छा किया निपेन जी की बहुत अच्छे से और विस्तार से समझा दिया है कि लोग क्या उम्मीद रखें जनवरी 2024 में। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल, हम थोड़ा सा टूर भी अगर आप इजाज़त दें और थोड़ा सा हमें बता सकें। ये पीछे मैं देख रहा था, ये यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये तो मेन मंदिर हो गया, तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मुझे बताना चाहिए था आपको। इसको हम लोग आपस की भाषा में परकोटा कहते हैं जी। यूँ समझिए कि ये मंदिर का एक परिक्रमा का मार्ग होगा, जिसको एक तरीके से परकोटा समझा जाता है, जो कि आप निर्माण को यूँ अनुमान लगा लें कि एक तरफ तो वॉल से बंद हो जाएगा हर दृष्टि से, जो कि आउटर प्रोटेक्शन होगा। उसके बाद जो अंदर कॉरिडोर होगा, उस कॉरिडोर में लोगों की परिक्रमा की व्यवस्था होगी, और उस जो वॉल जो बंद हो रही है जी, उस वॉल पर ब्रॉन्ज से हम एक कथा अच्छा बताने जा रहे हैं, जिसके करीब कुल मिलाकर 75 म्यूरल होंगे, ब्रॉन्ज का होगा। और वह कथा होगी किस प्रकार से राम और राम के सिद्धांत और वैदिक जीवन, ये आपस में वो कौन सी कथाएं हैं जो राम के वैदिक जीवन को उजागर करती हैं भगवान के। तो उसकी सारी म्यूरल्स इस परकोटा में होगी। तो इसको हम परकोटा बना रहे हैं। ये इसका एक पार्ट है, परकोटे के और भी पार्ट्स ये तो चारों पूरा पूरा कवर होगा। और ये कौन सी टाइमलाइन में आता है? 2025 वाली? ये नहीं, ये दिसंबर 2024 के पहले मई 2024 में परकोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन दिसंबर 2023 में चूँकि एंट्रेंस आपका प्रवेश इधर से होगा, और प्रवेश में आने के लिए आपको परकोटा से ही ऊपर मंदिर में जाना होगा। तो यह
परकोटा का प्रवेश हिस्सा और मंदिर का ये और इसकी जुड़ी सड़कें ये सब दिसंबर 23 में हो जाएंगी। अच्छा, तो मतलब ये वाला हिस्सा निश्चित दिसंबर और 23 सड़क में। दिसंबर 23 में तैयार है और ये मेन मंदिर है। जी हाँ। अब मैं मंदिर की ओर आपको ले चलना चाहूँगा और थोड़ा सा वो जो सैंक्टम सैंक्टोरम जो गर्भगृह की हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में बात करें। निपेन जी, ये पत्थर हमने देखे, ये राजस्थान से आ रहे हैं, बड़ी क्लियर मार्किंग है इन पर कि कौन सा पत्थर कहाँ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ जिक्सॉ पजल कि ये इधर फिट होगा। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से L&T इस पूरे काम को कर रही है। एक सवाल मेरे मन में था कि जब यहाँ निर्माण कार्य चलता रहेगा और साथ में जनता के लिए गर्भगृह खोल दिया जाएगा, ये व्यवस्था कैसे की जाएगी? क्योंकि गर्भगृह के आपने बताया उसके एकदम ऊपर निर्माण फिर भी चलता रहेगा, ये मैनेज कैसे किया जाएगा? और क्या कुछ लिमिट बंधाई जाएगी कि इससे ज़्यादा लोग ना रिलीज़ किए जाएं? देखिए, कोई हम श्रद्धालुओं पर सीमा नहीं रखेंगे। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि श्रद्धालु की सेफ्टी कैसे आप इंश्योर करेंगे जबकि निर्माण चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी 2 माह पहले एक फिल्म इसकी बनवाई। उस फिल्म में श्रद्धालुओं को चलाते हुए दिखाया कि वो चलते जा रहे हैं और भगवान के समक्ष 20 फीट दूर आ गए हैं। तो कहाँ कहाँ पर उनको निर्माण में चुनौतियाँ आएंगी। अच्छा, वो हमने फिल्मों में बनाया कि ये, क्योंकि देखिए 5 मंडप है जिसमें वो चल रहा है, उसके ऊपर 3 मंडप है तो कुछ खुला हुआ है, फिर 2 मंडप है और उसमें निर्माण कार्य हो रहा है। तो हम लोग ने यह प्रयास किया है कि जिसको एक आप वॉक द टॉक कहते हैं कि श्रद्धालु को किस रास्ते से अंदर हम ले जाएंगे जहाँ की निर्माण कार्य नहीं हो रहा हो और किस तरीके से टेम्परेरी पार्टीशनिंग करके सेफ्टी वॉल्स बना सकेंगे कि वह श्रद्धालु उस सीमा से आगे ना जाए। अच्छा, तो उतना ही एरिया खुलेगा जितना एक्सेस देना है। या जो उससे सुरक्षा की दृष्टि से उसके लिए संबंधित है। मैं समझ गया ये बात। तो ये सेफ्टी की हमने बात कर ली, बात ये भी हो गई है कि किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। यहाँ पर ये है मेन एंट्रेंस। मैं दर्शकों को बता दूँ, ये वो मेन एंट्रेंस है। अभी अगर आप पीछे देख रहे हो, ये वो वॉकवे बना है जहाँ पर वो जो टेम्प्रेरी मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर है जहाँ रामलला है वहाँ पर लोग जाते हैं। ये मैं निपेन जी समझ रहा हूँ कि ये फिर हटेगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो इस समय वर्तमान में आपने देखा एक टेंट सा बना हुआ निर्माण है और श्रद्धालु जा रहे हैं और आगे चल के हमारे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रास्ता खुल जाएगा और ये रास्ता लगभग आप समझें यहाँ से करीब 400 मीटर दूरी पर होगा, तो वो सब ये हटा दिया जाएगा। क्योंकि निर्माण कार्य नहीं हो सकता अगर हम इसको हटाते नहीं हैं। इसको वर्तमान में हम दर्शन मार्ग कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये हट जाएगा और श्रद्धालु फिर सीधे इंटर करेंगे। जो सड़क बन रही है उससे यहाँ एक नई सड़क भी बन रही है सीधा यहाँ, उससे ये कर सकेंगे। आपने एक सवाल जी नहीं पूछा। हाँ, जहाँ हम खड़े हैं जी, ये आप यूँ अनुमान लगाएं कि ये उतना ही मजबूत है जितना कि ये पत्थर है। अच्छा, मैं आपसे पूछने वाला था ये सवाल। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते, क्योंकि आपके कुछ इंटरव्यूज़ में पहले हमने ये जाना कि यहाँ की सॉइल टाइप जो थी वो उस तरीके की नहीं थी जिस पर आप सीधा इतना भारी कंस्ट्रक्शन कर दें। तो इसके लिए सीमेंट की लेयरिंग, इसको मजबूत किस तरीके से किया गया? जी हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इस निर्माण कार्य में अगर आप मुझसे पूछते कि आपने सबसे ज़्यादा क्या सीखा, जी, तो मेरी सबसे पहली जो कक्षा ली गई वह इस निर्णय को अंतिम रूप देने के लिए कि यहाँ पर जो ज़मीन है जो भुरभुरी थी, जी, क्योंकि सैकड़ों वर्ष से यहाँ पर कुछ न कुछ निर्माण बने या टूटे, तो इस कारण से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल सॉइल नहीं थी। दूसरा यह भी कारण था कि सरयू नदी के बहुत निकट थी। आज तो हम यहाँ सरयू नदी नहीं देखते, लेकिन बहुत लोगों का अनुमान है कि ये बहुत निकट थी। इन सब को ध्यान में रखते हुए जब सॉइल टेस्ट हुआ तो ये रिपोर्ट आई कि इस सॉइल पे
ऐसा मंदिर आप नहीं बना सकेंगे जो 1000 वर्ष के लिए हो। और चुनौती दी गई थी कि 1000 वर्ष का होना चाहिए। तो 8 देश के माने जाने स्ट्रक्चरल इंजीनियर, उनकी एक कमेटी बनाई गई जिसमें सब आईआईटी के डायरेक्टर्स या आईआईटी के पूर्व डायरेक्टर्स रहे। उन्होंने अध्ययन करने के बाद सबसे पहले यह रिकमेंडेशन किया, और वह रिकमेंडेशन के पहले ये आंकड़े आ गए थे कि पाइल फाउंडेशन स्टेबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो 2-3 पाइल्स बनाए गए तो वो फाउंडेशन में थोड़ा सा कर्व हो गया कुछ समय के बाद। जब उस पर प्रेशर दिया गया टेस्ट करने के लिए तो कर्व आ गए उसमें। तो यह उचित समझा गया कि यह तो संभव नहीं है। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आपको ये सॉइल हटाना पड़ेगा। अब आप ये अनुमान लगाएं कि करीब 500 फीट ये लंबाई, 400 फीट इधर, इस पूरे इलाके में 15 मीटर नीचे, 15 मीटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। 3 किता आपकी बिल्डिंग हो जाए। 15 मीटर नीचे हमको खोद करके यहाँ की मिट्टी सारी हटानी थी, पूरी मिट्टी हटानी थी। तो ये अपने आप में एक परीक्षा थी। और उस परीक्षा का समय काल भी था। समय काल ये था कि वर्षा के पहले, वरना वो मिट्टी वापस आ जाती। तो निर्णय लिया गया, L&T को कार्य दिया गया। मैं कहता हूँ उनके इंजीनियर, उनके प्रोजेक्ट मैनेजर, उन लोगों की ऐसी वचनबद्धता थी कि उन्होंने मिट्टी को हटाया। और मिट्टी की जगह जो एक भाषा, एक टेक्निकल वर्ड है कि उसको इंजीनियर्ड सॉइल से, मतलब IIT चेन्नई ने रिकमेंड किया कि किस प्रकार की सॉइल होगी जो अगर डाली जाए और कॉम्पैक्ट की जाए तो करीब 4 हफ्ते में वो स्टोन में उसकी क्वालिटी हो जाती है। अच्छा। तो 15 मीटर को हमने 12 से 15 मीटर को फिल किया उस प्रकार के सॉइल से। सॉइल बाहर बनता था, यहाँ आता था, लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर को कॉम्पैक्ट करते थे, और कॉम्पैक्ट करने के बाद उसके छोटे टुकड़े लेते थे। उन टुकड़ों को लैब में भेजा जाता था टेस्ट करने के लिए, और वो 3 लैब में अलग अलग होता था। एक दिल्ली में भी लैब थी। बाप रे बाप। और वो भी इतने बड़े एरिया के लिए। और वो फिर रिपोर्ट देते थे कि इसने कितना स्ट्रेंथ गेन किया है 28 दिन में। तो जब वो स्ट्रेंथ गेन हो जाता था तब नेक्स्ट लेयर, फिर उसके बाद। अच्छा, वो एक साथ नहीं कर सकते? एक साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर लेयर की स्ट्रेंथ जांचनी। वो करने के बाद 15 मीटर किया गया। तो लोगों ने कहा कि ये तो अच्छा हो गया, लेकिन अगर यह है तो इसके ऊपर राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो राफ्ट भी पत्थर की होनी चाहिए। तो उन्होंने रिकमेंड किया, और यह भी आवश्यक समझा गया क्योंकि यहाँ साधु संत के तो विचार थे ही। अनेक लोगों के जो पुराने मंदिरों के निर्माण का में रुचि रखते थे, अध्ययन करते थे कि कौन सी तकनीकी चीज़ें इस्तेमाल होती थी। उन्होंने कहा इसमें आयरन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि 1000 साल के हिसाब से। क्योंकि आयरन का यह अनुमान लगाया जाता है कि 100 साल से कुछ कम ही होता है इसका जीवन काल। तो फिर यह हुआ कि साहब इसमें RCC का स्ट्रक्चर नहीं होगा। जी। तो RCC का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो जो राफ्ट था वो RCC का ना होकर के सीमेंट कंक्रीट का बनाया गया। वो करीब 3 मीटर का था ऊंचाई, ओवर एंड अबव द सॉइल। हाँ जी, हाँ। वो जो 15 मीटर हुआ उसके ऊपर फिर ये हुआ। उसके ऊपर फिर हमको जो है वो प्लिंथ बनानी थी। प्लिंथ की निर्णय हुआ कि ग्रेनाइट स्टोन की बनाई जाए। तो फिर ग्रेनाइट स्टोन आया। तो थोड़ा सा दर्शकों को समझाने के लिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये वो राफ्ट है 3 मीटर की, जो कि निपेन जी बता रहे हैं, जो कि उस फाउंडेशन पर बनी है, और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये ग्रेनाइट का पूरा यह जो हमारा निर्माण कार्य है ये किया गया। और जाहिर है इस स्टोन को एक दूसरे से किस प्रकार से लगाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, वह सब अध्ययन करके बनाया गया। और ग्रेनाइट स्टोन से प्लिंथ की ऊंचाई तक ला दिया गया। ये लगभग आप इस ऊंचाई तक समझें कि ग्रेनाइट वर्क हुआ। जी।
और उसके ऊपर फिर सैंडस्टोन। वो बंसी पहाड़पुर राजस्थान जी जी का सैंडस्टोन, हाँ। जो आप अभी ऊपर चलेंगे तो और बिल्कुल। दिखाई देगा, बिल्कुल। वह ले डाउन है, जिसकी 13 लेयर हाँ अब डालनी अब है, डालनी तब जाएगी। जा हाँ। करके ग्राउंड वर्क की छत पहुंचेगी। निपेन जी, ये जो आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसमें तो ऐसे लग रहा है एक प्रभु राम ने परीक्षा आपकी भी ली है कि किस तरीके से इंजीनियर्ड सॉइल, सीमेंट, आरसीसी, ग्रेनाइट और उसके बाद सैंडस्टोन। ये आप मानेंगे कि आपकी मतलब इतना यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ एक्सपीरियंस, और ये अपने आप में यूनिक ये एक्सपीरियंस पहली बार एक्सपीरियंस था। हाँ इससे पहले निर्माण कार्य की अनुश्रवण मॉनिटरिंग तो करते थे, हाँ लेकिन ये पहली बार हमारा एक्सपीरियंस था दैट आई हैड टू रियली डिसाइड ऑन द choice to be made for the engineering works, and that was done here. Wow. So in many respects you can definitely say that my learning process in this field started now. स्टार्टेड नाउ। अच्छा, ऊपर चलते हैं और Yeah. वो जो गर्भगृह है वो देखते हैं। तो अब हम उस जगह पर आ गए हैं जो कि थोड़ा हाइट पर है और गर्भगृह की ओर जा रहे हैं। निपेन जी, आज सुबह यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी हमने बात की। भयंकर नक्काशी वाला काम धीरे 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 वो अब शुरू हो गया है यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये भी एक स्किल है जिसके लिए लोग अलग अलग जगहों से लाए गए हैं। ये बहुत ही इंट्रिकेट वर्क होता है जी। इसका एक और चैलेंज भी है। हाँ। जो इसका मुख्य किसी एक पत्थर का नक्काशी का जो कार्य करता है वह एक ही व्यक्ति कर सकता है, हाँ क्योंकि हर व्यक्ति के हाँ जो स्किल है हाँ या जो प्रेशर है हाथ का हाँ। वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट। तो एक स्वरूप लाने के लिए एक ही व्यक्ति को एक पत्थर दिया जाता हाँ। है और उस पत्थर को वही करता है। इसमें ज़्यादातर लोग उड़ीसा से, हाँ। राजस्थान से आए हैं जिन्होंने कि यह कार्य लिया है जी। और ये आज के उसमें आप देख रहे हैं हाँ। तो ऐसा लगेगा आपको कि ये नक्काशी तो है, लेकिन ये क्यों है, जी। कहानी क्या है। हाँ लेकिन जब इनको जोड़ दिया जाएगा हाँ और जब ये आप मंदिर उस समय देखेंगे जब ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जी। तो प्रत्येक पिलर, प्रत्येक नक्काशी अपने में एक कहानी है जी। जो कि कहीं न कहीं भगवान के जीवन से संबंधित होगी। हाँ। ये एक स्पेशल फीचर मैं कहूँ हाँ हाँ तो इस निर्माण कार्य में जी। इसको ध्यान रखा गया है कि जो भी हम संदेश उनका देना चाहते हैं उस संदेश को निर्माण कार्य से हाँ। हम आगे बढ़ा सकें, जी। वह श्रद्धालु के लिए उचित होगा। निपेन जी, ये मंदिर इज़ अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड न्यू एज टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी आपने समझाया, ये हाथ का जो काम जो पुराने प्राचीन मंदिरों में होता था वो भी हो रहा है, और वो हर मशीन, वो हर उपकरण जो कि नवीन कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप अगर हाथ का ही नक्काशी करें हाँ। तो मेरा ये क्लेम नहीं है कि सभी नक्काशी केवल हाथ से होंगी। बहुत सी नक्काशी ऐसी होगी जो कि मशीन मेड है और मशीन्स भी आ गई हैं। तो ये इन लोगों ने तय कर रखा है कि कौन सा कार्य ऐसा होगा जो हाथ से होगा जी। और कौन सा ऐसा पत्थर है जिसकी की नक्काशी हम, क्योंकि हमें एक स्पीड भी मेंटेन करनी है, तो उस दृष्टि से हम मशीन से दोनों कार्य चीज़ों का उपयोग। करेंगे। निपेन जी, मैं एक बड़ी रोचक चीज़ देख रहा हूँ पीछे होती हुई। ये पत्थर आया बाहर से और उसके बाद ये फिक्स हो रहा है। जी हाँ। और इसके बाद इसको साथ में जोड़ा कैसे जाएगा? जी, इसमें आप देखेंगे दोनों पत्थरों के बीच में एक होल है जी। और एक नेल को उसमें ला करके फिक्स किया जा रहा है, और इसको रखने के बाद जो आर्किटेक्ट हमारे हैं वो इसको सर्टिफाई करेंगे कि जिस लेवल पे ये आया है जी।
और जितना स्पेस है ये एज पर हिज डिज़ाइन एंड एज पर इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ वो है। अगर जरा सा भी स्पेस में अनइवन हो गया तो अंत में इसका यो प्रभाव आप समझें कि ऊपर जाने के बाद जब बीम पड़ेगी तो टेढ़ी हो जाएगी। तो टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए इसको इतना मेजर करना पड़ता है जिसकी कि मशीन की सुविधाएं आपको यहाँ है। वो रही पीछे मशीन दिख रही है। तो इसको इस प्रकार से ला करके वो जब प्रमाण पत्र देते हैं तब अगला पत्थर लगता है। निपेन जी, एक चीज़ मैं ये भी देख रहा था यहाँ पर कि बहुत कम ईंट का और सीमेंट का प्रयोग, मेरे ख्याल से दिस इज़ फॉर द लॉन्जेविटी ऑफ द टेम्पल, कि वो 1000 साल का जो आपने एनविजन किया है उसकी वजह से ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे कि कार्य तो है ही नहीं। हाँ, सीमेंट का तो कार्य केवल दो पत्थरों के बीच में कुछ अगर एडहेसिव का इस्तेमाल होना है, उसको अचीव करना है तो वो थोड़ा बहुत हो सकता है। अदरवाइज तो स्टोन वर्क है, ये पूरा स्टोन टेम्पल है। और इसी प्रकार से जो ईंट है वह परकोटा में तो क्लैडिंग के लिए है थोड़ी बहुत, लेकिन जहाँ तक ये प्रश्न है, मंदिर का प्रश्न है, यहाँ पर तो या तो स्टोन है या जो इंजीनियर्ड स्टोन है, कोई दो चीज़ों का ही निर्माण हुआ है। बिल्कुल। तो ये आपने बताया कि वेरी लिटिल और नो सीमेंट और स्टोन का प्रयोग एंड अ मिक्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड एंड नो यूज ऑफ स्टील एंड नो यूज़ ऑफ स्टील, करेक्ट, क्योंकि वो करोड कर सकता है, वो उसकी उतनी लाइफ नहीं है। मैं एक सवाल आपसे इफ़ यू कुड वॉच स्टेप, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता था निपेन जी कि अगर आपको इसकी तुलना करनी होगी, आई नो इट्स एन अनफेयर कंपैरिजन, बट अगर तुलना फॉर आर्ग्यूमेंट से ये मंदिर स्ट्रक्चरली और इन टर्म्स ऑफ एन इंजीनियरिंग मार्वल आप इसको किससे इक्वेट करेंगे? वेयर हैज़ दिस टेम्पल टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम? देखिए, इस टेम्पल का इंस्पिरेशन कहाँ से हुआ यह इस प्रकार से तो बताना कठिन होगा, लेकिन जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो एक सोमपुरा परिवार होता है। गुजरात में सोमपुरा परिवार के लोग मंदिर निर्माण में, अलग अलग परिवार हैं, कोई एक परिवार नहीं है, वो लोग मंदिर निर्माण के बहुत बड़े जानकार आर्किटेक्चरली, और ज़रूरी नहीं है कि उनको सबको एक फॉर्मल डिग्री मिली हो, लेकिन उनका पारिवारिक एक तरीके से आप स्किल को ट्रांसफ़र करने की, उनकी ट्रांसफ़र ऑफ स्किल हो जाता है उस परिवार में। तो ये जो सोमपुरा से, उन्होंने यह सजेस्ट किया कि हम यहाँ के मंदिर को नागर शैली में बनाएंगे, जो कि एक तरीके से कल्पना उन्होंने की कि भगवान राम के समय दशरथ का जो निर्माण यहाँ अयोध्या में था, तो किस प्रकार के निर्माण को प्राथमिकता मिलती थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नागर शैली चुनी। अब आपने ये पूछा, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए जवाब नहीं देना चाहूँगा कि इसको किसी अन्य मंदिर से आप कैसे तुलना करेंगे। अलग अलग चीज़ों की तुलना तो हो सकती है, क्योंकि हर मंदिर अपने में अनोखा है, और एंशिएंट टेम्पल भारत के तो एक तरीके से इंजीनियरिंग मार्बल हैं, वंडर हैं। तो उस हिसाब से देखें तो हमने नकल तो की, एंशिएंट टेम्पल के इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को तो अडॉप्ट किया, लेकिन अगर आप यह जानकारी करना चाहें कि आर्किटेक्चरली या आइकनोग्राफी में आपने कितनी नकल की, तो मैं केवल यही कहूँगा कि नागर शैली की नकल है, लेकिन किसी मंदिर विशेष की नकल नहीं है। बिल्कुल। अब आइए गर्भगृह की ओर चलते हैं। और एक चीज़, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था निपेन जी, जिसमें आप बता रहे थे कि आपने ये मंदिर की कल्पना इस तरीके से की है कि पीक रश में 1 सेकंड में मेरे ख्याल से 5 या 6 लोग, मतलब इतने लोगों को अकोमोडेट करने का प्रोविज़न यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, ये गली, ये पैसेज, आपको लगता है इतनी भीड़ यहाँ अकोमोडेट हो सकती है? क्योंकि हम सीधा गर्भगृह एकदम सामने ही है हमारे। यहाँ बिल्कुल पहुँच रहे हैं गर्भगृह के। आपने ये प्रश्न पूछा और ये चिंता
हर एक की है। रामनवमी के दिन जी अनुमान है कि कम से कम 5 लाख लोग दर्शन करेंगे। और अगर ये माना जाए कि 16 से 18 घंटे भी मंदिर खुला रहेगा तो कैसे दर्शन करेंगे, यह एक प्रश्न उठता है। फिर आपको एक और बात बता करके उस चीज़ का उत्तर देना चाहूँगा। हमारा एक साइंटिफिक प्रयास यह है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लोगों की मैंने सहायता प्राप्त की, सारे ट्रस्ट ने सहायता प्राप्त की, कि हम रामनवमी के दिन 12 बजे दिन में सूर्य की किरण वो भगवान के यहाँ मस्तक पर आकर के फोकस करें। तो उसको अगर यहाँ पर लाना है तो नेचुरली एक चुनौती और भी होगी, हर श्रद्धालु के मन में होगा हम 12 बजे यहाँ रहें। और उसी समय भीड़ उमड़ेगी। उसी समय स्टैम्पीड भी हो जाए, नहीं होगा लेकिन फिर भी। तो पहले से यह प्रयास किया गया कि पूरे अयोध्या में कम से कम 50 से 100 स्क्रीन्स होंगे जो कि भगवान का दर्शन और उस पर सूर्य किरण, क्योंकि वो तो केवल 5 मिनट होगा, बिल्कुल, तो उसको लोग देख सकें। लेकिन जो आपका पहले प्रश्न था कि ये इतने नैरो पैसेज में आप क्या करेंगे, जैसे आई बिलीव यही एंट्री पॉइंट होगा लोगों। बिल्कुल, ये सेंट्रल प्लान। यो आप देखें कि हम इसमें 5 रो चलाएंगे। ये हम लोगों ने अपना एक अनुमान लगा लिया है। 5 रो चलेंगी इसमें। यहाँ से ये पिलर और जो अगला पिलर है वहाँ 2 हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ उधर हैं। हाँ। ठीक। तो इस तरीके से ये रो चलेंगे। और जो सैंक्टम सैंक्टोरम जहाँ भगवान स्थापित होंगे वहाँ से लगभग 30 फीट दूरी तक पहुँच सकेंगे। तो 30 फीट की दूरी मेरा यह अनुमान होगा कि अब आप जैसे गर्भगृह और गुरु मंडप के बीच में है, तो उसको यहाँ से दर्शन करना होगा। अच्छा, दर्शन यहाँ से हाँ, लगभग 20 से 30। राजेश कैमरा घुमा के दिखाएं, वो गर्भगृह है पीछे जहाँ हम सुबह भी आए। भगवान का ध्वज है, वो ध्वज भी लगा हुआ। तो अगर वहाँ पर होंगे। पर निपेन जी कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, क्योंकि एक दिक्कत ये भी हो सकती है कि मुझे दिखेगा ही नहीं। जी 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 बिल्कुल, दर्शन ही नहीं होंगे। जी हाँ, क्योंकि आपने शायद अभी वर्तमान मंदिर देखा इसलिए प्रश्न है। देखिए वो 2 स्वरूप होंगे यहाँ पर। अच्छा। एक स्वरूप तो वो होगा जो वर्तमान में वहाँ भगवान है, जो बिल्कुल बाल स्वरूप हैं, जो इतनी ऊंचाई में है, बिल्कुल वो स्थापित होंगे। और उनके ठीक पीछे ही लगभग 5 फीट लंबी भगवान की मूर्ति होगी। अच्छा। जो खड़ी बाल्यकाल की होगी, लेकिन वो भी जो मूर्ति होगी वो 6 वर्ष के बालक से कम की मूर्ति होगी। अच्छा। उसका कार्य अब प्रारंभ किया गया है। और उस मूर्ति को जो औपचारिकताएं होती हैं, जो धार्मिक पालन होगा, जैसे जिस समय उसकी कार्विंग होगी तो 24 घंटे लगातार मंत्रों का उच्चारण होगा। अच्छा। जहाँ वो कार्विंग होगी, वो करके जब मूर्ति यहाँ आएगी तो 2 आवश्यकताएं हैं जो कि उस मूर्ति के फाइनल शेप में होंगी। एक तो यहाँ श्रद्धालु की आँख भगवान के आँख से मिल सके। अच्छा। तो जो ये ऊंचाई हमारी होगी और जो भगवान 5 फीट की ऊंचाई पर होंगे, तो उसमें लेवल होगा। एक औसत भारत के लोगों का हाइट को लेकर के। दूसरा, वो इससे संतोष नहीं होता, वो चरण भी अपना धर्म के दृष्टि से देखना पात्र तक जाना चाहेंगे। और तो इसलिए जो उनका चरण होगा वो भी दिखाई देना चाहिए। अच्छा। तो वो एक पेडेस्टल पे भगवान होंगे और उस पर वो 5 फीट की ऊंचाई पर होंगे। तो इस प्रकार से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाइन में खड़े हुए इंसान को भी दिखे। इंसान। और यह एक अपेक्षा की गई है कि जब भगवान की वो मूर्ति हो समचरण हो, मतलब दोनों चरण इस प्रकार से हो कि एक ही स्थल, एक ही हाइट, एक ही उसके हो। तो उसका निर्माण कार्य जो है अब
मैं समझता हूँ अगले महीने। ये दोनों ही मूर्तियां 2023 दिसंबर तक रख दी जाएंगी? निश्चित रूप से रखी नहीं है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जी। तो जो उस टेम्पररी मंदिर है वो भगवान को आना जी। और जो दूसरी, इसीलिए हम प्रायः 2 प्रकार की मूर्ति करते हैं। एक को तो कहते हैं उत्सव मूर्ति और एक होती है अचल मूर्ति। उत्सव मूर्ति तो वह होती है जैसा आपने देखा पुरी वगैरह में, जब भगवान बाहर आते हैं हाँ। और वो बाहर आके दर्शन देते हैं और फिर वापस जाते हैं। और एक वह जो कभी मंदिर से बाहर नहीं जाते, जो अचल होती है, तो उसकी व्यवस्था यहाँ पर होगी। अच्छा। और यहाँ पर उसके निर्माण जी। अब हमारा आखिरी पड़ाव आ गया है, गर्भगृह की ओर हम जा रहे हैं। तो यहाँ से लोग आए, उसके बाद मैं देख रहा हूँ ये 2 निकासी है इधर, तो लोग यहीं से नीचे उतर जाएंगे या और आगे जाएंगे? नहीं, आप यूँ अनुमान लगाएं कि या तो लोग उधर से जाएंगे हाँ। या लोग इधर किनारे से जाएंगे। अच्छा। दोनों रास्तों से बाहर जा कर के हाँ। और स्टेप डाउन वहाँ आगे चल कर के व्यवस्था की जा रही कि वो नीचे जा कर के और फिर वो वहाँ से पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर में जहाँ वो अपने सामान वगैरह रखा होगा वो इकट्ठा करके जा सकेंगे। या जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो अन्य मूर्तियाँ बननी है, अन्य मंदिर 7 बनेंगे जो इसके बाहर होंगे, वहाँ उनका दर्शन करेंगे और फिर जाएंगे। अच्छा, ठीक है। आइए हमारा आखिरी पड़ाव गर्भगृह, एकदम पीछे जो निपेन जी अभी बता रहे थे कि किस तरीके से एक पेडेस्टल पर भगवान की मूर्ति रहेगी, स्थापित की जाएगी। ये वो जगह है, यहाँ हम लोग कुछ समय पहले भी आए थे निपेन जी। यहाँ तक आप कह रहे हैं संभवतः लोग जा पाएंगे? जी, सामान्य दिन में जब भीड़ कम होगी तब तो यहाँ तक आ सकेंगे। जिन दिनों में भीड़ ज़्यादा होगी तो हम लोगों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो 2 डिस्टेंस तय किया गया है, एक 20 फीट की दूरी पर, एक 30 फीट की दूरी पर। 20 फुट यहाँ तक हुआ लगभग, आप समझें जी। यहाँ पर आप जब दर्शन करेंगे तो पहला तो यह आप अनुमान करें, जो निर्णय हो चुका है कि जो इसके दरवाजे बनेंगे, 12 दरवाजे अलग अलग हैं जी, खिड़कियाँ नहीं हैं। हाँ। गर्भगृह में 12 दरवाजे जी अलग अलग हैं। उसके बाद सही माने में फिर दरवाजे है ही नहीं, फिर वो एक खुला हुआ है। खुला हुआ तो ये 12 दरवाजों में टीक वुड का, सागौन का, जो महाराष्ट्र से आ रहा है जी, उसका कार्व्ड डोर बनेगा। हाँ। और उसकी चौखट मार्बल की होगी और जो डोर बनेगा उस पर फिर स्वर्ण का कार्य होगा। अच्छा। तो ये 12 दरवाजे होंगे, वह गोल्डन अरे वाह, कवरेज होगी। बहुत ही बढ़िया। तो वह, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये सब किसी सरकारी व्यवस्था का अंग नहीं है। हाँ। एक भी पैसा, एक भी धनराशि सरकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं की गई है। ये सब जो श्रद्धालु हैं उनका डोनेशन है। जो यह सोने का भी कार्य होगा, ये एक श्रद्धालु ने ये अपने तरफ से एक तरीके से इच्छा ही नहीं व्यक्त की, बल्कि उनका मन ये है कि दरवाजे करें और जो शिखर होगा वो भी सोने का होगा। तय हो चुका है कि शिखर पूरा ऊपर तक सोने का होगा। लेकिन उनकी इच्छा ये है कि भगवान का जो अंदर है, जो मार्बल से, वाइट मार्बल में होगा, उसको भी सोने से किया जाए। तो यह निर्णय हुआ कि यहाँ आने के बाद किसी भी श्रद्धालु को सोना दिखाने की बजाय भगवान को दिखाना उचित होगा। बहुत सही। इसलिए यहाँ पर यह निर्णय हुआ है कि अंदर कोई सोने का कार्य नहीं होगा। बाहर। उनका जो श्रृंगार है जिस पर वो रहेंगे वो तो सोने का होगा ही, लेकिन वॉल वगैरह कोई सोने का कार्य नहीं होगा। अंतिम सोने का कार्य दरवाजे तक ही होगा और ऊपर होगा। निपेन जी, इतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं लगता और कोई दे सकता है, और किसी को पता भी होगी। ये शायद संभवतः पहली बार इतने विस्तार से हम जान रहे हैं। गर्भगृह तक आ गए हैं और हमें ये पूरी जानकारी मिली है कि अब कुछ ही महीने दूर है जब श्रद्धालु खुद आ सकते हैं यहाँ पर और यहाँ तक राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निपेन जी। और हाँ। ये आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं कि जो वर्तमान में कार्य, जो सबसे प्रगति पर कार्य है, वो यहाँ के स्टोन हैं।
ये 7 लेयर हाँ। तक ये स्टोन पहुंच चुका है। हाँ। ये पूरा ये 7 लेयर है। हाँ। इसके ऊपर अभी 5 लेयर और 5 होकर- और जाएंगे। हाँ। हाँ। और तब उस पर बीम होगी, और फिर अगला फ्लोर बनेगा। फिर अगला फ्लोर बनेगा। तो वो उस प्रकार का मतलब हाइट बहुत होगी। हाँ। उस प्रकार से आप यूँ अनुमान लगाएं हाँ। कि 5 मंडप यहाँ से लेकर के 5 मंडप इसी हाइट में चलेंगे और निर्माण कार्य होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का प्रयास है कि गर्भगृह और गुरु मंडप को हम पहले पूरा करें। चंपत राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है चंपत राय जी। क्या संभावना आपको लगती है कि ये जल्दी से जल्दी लोगों के लिए खुल जाएगा? काम करने वाले, जो नक्काशी करने वाले, जो पत्थरों को जोड़ने वाले वहाँ कारीगर हैं, बंसी पहाड़पुर के वेंडर्स हैं, टाटा और एलएनटी के इंजीनियर्स हैं, इन सब का भरोसा है कि मंदिर की पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर ये दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी गर्भगृह में। तो नए मंदिर में गर्भगृह में दर्शन पूजन प्रारंभ हो जाएगा। शेष निर्माण कार्य फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये चलता रहेगा। सर, एक बात ये भी सामने आती है कि जब निर्माण कार्य चलता रहेगा, ऐसे में लोग वहाँ आने लगेंगे, निर्माण कार्य भी लगातार चलता रहेगा, तो ये दोनों चीज़ें मैनेज किस तरीके से की जाएंगी? वहाँ तो भीड़ बढ़ जाएगी, कार्य भी साथ में, और फिर जनता भी, जाहिर सी बात है भारी से भारी मात्रा में लोग जुटेंगे। पत्थरों का जो काम करते हैं उनका कहना है दोनों काम साथ साथ चलते हैं, और भी कई मंदिरों में ऐसा ही हुआ है। ये कहना उन लोगों का है जो पत्थरों के ही मंदिर बनाते हैं। एलएनटी तो पत्थरों का मंदिर कभी बनाया नहीं, उनके जीवन का तो पहला काम है। तो शंकाएं उनको हो सकती हैं, शंकाएं समाज को हो सकती हैं, शंका मुझे और आपको हो सकती है, लेकिन जो पत्थरों का ही काम करने वाले कारीगर हैं, जिनका पीढ़ियों से यही काम है, उन्हें कोई शंका नहीं है। ये मंदिर दिसंबर 2023 तक आप कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जनवरी में संभवतः ये लोगों के लिए प्रथम चरण में खुल जाएगा। इसको चुनाव से जोड़ करके भी बहुत लोग देखते हैं कि ये चुनाव से पहले एक चरण आप कर देंगे ताकि उसका लाभ चुनाव में पहुंच सके। आप नहीं, मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को। इन आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? हमें अपनी योजना से चलना है, दुनिया क्या सोच रही है ये मेरा विषय ही नहीं है। हमारा क्या विचार है, हम उसके अनुसार चलना है। ये तो है मेरा सज्जनता का उत्तर जी। लेकिन एक दुष्टता का उत्तर भी है कि बिल्ली को स्वप्न में मांस के चीथड़े ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। तो जो राजनीतिक खोपड़ी के लोग हैं उन्हें स्वप्न में भी मांस के चीथड़े और चुनाव ही दिखाई देता है, सज्जनों को नहीं, सज्जनों को मंदिर दिखाई देगा। एक चंपत राय जी, मंदिर से जुड़ा नहीं लेकिन मंदिर की वजह से ही, क्योंकि शहर का एक स्वरूप बदल रहा है। आज हमने जब यहाँ आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत जगह सड़क के चौड़ीकरण के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं। आपको लगता है ये कार्य जो है ये ठीक तरीके से हो रहा है बिना लोगों को आहत किए हुए, जो अयोध्यावासी हैं? ये विषय तो अलग है, लेकिन इसमें से एक बात सिद्ध हो रही है कि दुनिया में और हिंदुस्तान में पर्यटन और तीर्थाटन का अंतर क्या है। बनारस में तीर्थाटन है, अयोध्या में तीर्थाटन है, वृंदावन में तीर्थाटन है, उज्जैन और चित्रकूट में तीर्थाटन है। जहाँ तीर्थाटन है वहाँ लाखों की संख्या में जनता है,
और लाखों की संख्या में आने वाले भक्तों और जनता को एकोमोडेट करने के लिए कॉरिडोर शब्द है। कॉरिडोर के तो कोई अर्थ नहीं, कॉरिडोर एक गलियारे को भी कह सकते हो और कॉरिडोर चौड़े मैदान को भी कह दिया। लेकिन जहाँ केवल टूरिज्म है, नैनीताल, मसूरी, हिल स्टेशन, वहाँ नहीं है। तो ये चौड़ीकरण हो रहा है, ये पर्यटन के कारण हो रहा है या तीर्थाटन के कारण हो रहा है। तो ये तीर्थाटन की दृष्टि से हो रहा है। हिंदुस्तान में तीर्थों की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या निरंतर कई गुना बढ़ रही है। और जब वाहन बढ़ेंगे, जनता बढ़ेगी, तो उनको कहीं चलने के लिए सड़क तो चाहिए। बिल्कुल। इसी से जुड़ा मेरा आखिरी सवाल, जब यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे और देखिए जाहिर सी बात है जब एक स्वरूप बदलेगा शहर का, इतना बड़ा मंदिर होगा तो श्रद्धालु भी आएंगे और पर्यटक भी आएंगे इस शहर में। ऐसे में आपको लगता है कि मंदिर में कोई एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि इतने समय में इतने लोगों को अलाउ किया जाए, एक चरणबद्ध तरीके से लोगों की एंट्री हो, वहाँ कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग एकदम से आ जाएं 1 जनवरी 2024 के बाद? क्योंकि निर्माण कार्य अभी भी चलता रहेगा। अभी भी 1 जनवरी को पिछले 3 साल से 1 लाख से ज़्यादा लोग मंदिर के दर्शन करते हैं। तो अगर 1 लाख आदमी राम जन्मभूमि के अंदर दर्शन करता है, इसका अर्थ है सड़क के ऊपर कम से कम 3 लाख आदमी मौजूद है। 1 जनवरी कोई त्यौहार नहीं है। और ये अयोध्या का नहीं दृश्य, जहाँ जहाँ तीर्थ हैं वहाँ पर 1 जनवरी को आने वाले लोगों की संख्या मल्टीप्लाई हो गई है। ये तो अब भी हो रहा है। केवल उनको पानी मिले, स्वच्छता मिले, मौलिक और बेसिक जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उसके स्थान मिल जाए, वाहन पार्किंग के स्थान मिल जाए, सड़क पर चल रहे हैं तो जाम ना लगे, इतनी ही बेसिक बात है और कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ सारी प्लानिंग इस ढंग की है कि अगर 2 लाख लोग भी रोज आएंगे तो कुछ नहीं होगा। शेष तीर्थ की दृष्टि से आने वाला आदमी ईश्वरीय प्रकोप से दुर्घटना हो सकती है, वैसे नहीं होती। राम जन्मभूमि तो 2 साल से बन रही है, लेकिन कार्तिक का स्नान, झूले का मेला यानी रक्षाबंधन और रामनवमी, 10-10 लाख आदमी हमेशा से आता है। सड़कें छोटी थी तो भी यहाँ कहाँ मरते थे लोग। एक उत्तर और समझ लो, जो आपके घर में भी होगा कहीं ना कहीं, तीर्थ में मरने पर लोग अपना भाग्य समझते हैं कि चलो सीधे भगवान के पास चले गए। नहीं, वो बात तो आपकी सही है, लेकिन कोई मृत्यु होती है वो रोते नहीं, फिर वो अपने को भाग्यशाली मानते हैं, घर के लोग भी। लेकिन यहाँ अयोध्या में होता नहीं कभी ऐसा। पर ये कारण नहीं हो सकता है अव्यवस्था का, तो व्यवस्था बननी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सड़कों का चौड़ा होना। अव्यवस्था श्रद्धालुओं में नहीं होती, मौज मस्ती करने वाले लोग अव्यवस्था करते हैं, और मौज मस्ती का नाम है टूरिज्म। तफरी यानी टूरिज्म, श्रद्धा यानी तीर्थाटन। चंपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो पहले ट्रस्टी हैं वो अब हमारे साथ हैं बिमलेन मोहन प्रताप मिश्रा जी। आप राजा अयोध्या की तरह भी जाने जाते हैं। मुझे मालूम है कि ये इंट्रोडक्शन आपको पसंद नहीं है। जी सचमुच ये इंट्रोडक्शन मुझे पसंद नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर लास्ट राजा थे, तो मैं भी एक आज के ज़माने में एक सामान्य नागरिक हूँ, मैं ये कहता हूँ जी। हाँ। और जहाँ तक ट्रस्टी का सवाल है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जो है ट्रस्टी बनाया गया श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, और मुझे सेवा का अवसर मिला। जी सर, ये मंदिर बनेगा और इसका जो प्रथम चरण है वो जनता के लिए खुलेगा संभवतः जनवरी 2024 में।
अयोध्या के लिए ये मंदिर कितना ज़रूरी है? अयोध्या के लिए क्यों आप कह रहे हैं, पूरे विश्व के लिए ये मंदिर जरूरी है, पूरे हिंदू समाज के लिए मंदिर जमीन जरूरी है, प्रभु श्री राम के मानने वालों के लिए मंदिर ज़रूरी है। और आपको अगर इतिहास पता हो तो ये पता होगा कि ये जो है तोड़ के बनाया गया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली 5 जजों की बेंच ने इसको मंदिर के पक्ष में निर्णय लिया। तो अयोध्या के लिए तो ख़ास इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ के नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों का भरण पोषण अच्छा होगा, दुकानें चलेंगी। तो अयोध्या के लिए तो ये स्वर्णिम युग आ रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन इसी स्वर्णिम युग में सर एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि ये जो जैसे राज सदन है, इसी के बाहर अगर आप देखें तो बहुत तोड़फोड़ हुई है सड़क चौड़ीकरण को लेकर के, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन घरों में रह रहे थे वो टूट गए। नहीं, उनको सरकार पूरा कंपनसेशन दे रही है। जो दुकान उजड़े हैं उनको दुकान अलॉट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अभी आपको नज़र आ रहा है 2 साल बाद यही अयोध्या देख के आप वाह वाह करेंगे। अयोध्या में जो इनफ्लो होगा श्रद्धालुओं का, और मैं समझता हूँ श्रद्धालु तो आएंगे, साथ में पर्यटक भी आएंगे, इसको सस्टेन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? जैसे कि होटल, जैसे कि सड़क, फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको 2-2.5 साल में दिखने लगेंगी। आज भी पर डे जो अनुमानित वो है 100 बसेज आती हैं पर्यटकों की, और कम से कम 1000 गाड़ियाँ आती हैं 4 व्हीलर जो पर्यटक आते हैं। तो पर डे आप समझिए कि 1 लाख के ऊपर पर्यटक आते हैं जो मंदिरों के दर्शन करते हैं अयोध्या में। और ये जब मंदिर बन जाएगा तो इनकी संख्या 10 गुनी बढ़ जाएगी। तब तक बहुत सी चीज़ें विकसित हो जाएंगी। युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं, और उनका मेन फोकस अयोध्या पे है, जिसके लिए सारे अयोध्यावासी उनके आभारी हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग दे रही है इसके लिए। तो आपका ये मानना है कि ये जो आइडेंटिटी एक मंदिर के इर्द गिर्द पहले भी थी, लेकिन अयोध्या, ये तो आप भी जानते हैं, आप यहाँ बहुत ज़माने से हैं, अयोध्या को हमेशा स्लीपी टाउन की तरह देखा गया है कि गुमसुम सा, एक अलग ही धीमी मध्यम चाल वाला ये एक शहर था। आपको लगता है उसमें तेज़ी आएगी? आ चुकी है तेज़ी। अच्छा। और अब ये बहुत द्रुत गति से दौड़ेगा, मैं कहूँगा वो समय जा चुका है। उसके परिक्षेप में मैं जाना नहीं चाहता जी। कि कुछ राजनीतिक ऐसा समीकरण था कि अयोध्या की तरफ राजनीतिक दलों ने ध्यान नहीं दिया, और उसका कारण आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है। तो अब वो बदल रहा है? अब वो बदल रहा है, बदल चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ये बताओ। बिल्कुल।